तो शुभ दिन की शुभ शुरुआत हो चुकी है महिम से। दिस इज़ द ब्यूटीफुल स्पॉट ऑफ मुंबई जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल करने के लिए अच्छा इनिशिएटिव जो बेस्ट सेलर इंडिया ने लिया है, उसके लिए दाग देता हूँ। यहाँ पे और एक चीज़ बता सकते हैं, मेरे पीछे आप कर्मचारी वहाँ पर देख सकते हैं जो ऑलरेडी इस बीच को साफ़ सफाई करते हैं फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे साफ़ सफाई इनके द्वारा होता है। लेकिन ये बंदे जो आए हैं बेस्ट सेलर इंडिया से, वो इस जगह को थोड़ा और साफ़ सफाई करने में मदद करेंगे। वो पहाड़ आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन ये साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। सारा हम अपने साफ़ सफाई कर्मचारी पे नहीं छोड़ सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको गंदगी कम करनी है। आज सब सोचेंगे तो कल करेंगे। बहुत लोग ये ऑलरेडी कर रहे हैं, हम लोग भी इसका पार्ट बन रहे हैं थैंक्स टू बेस्ट सेलर इंडिया, जो कि ये अच्छा इनिशिएटिव लिए साफ़ सफाई करने का। जो पीछे इतना खूबसूरत दिख रहा है, नीचे भी उतना ही खूबसूरत दिख रहा है। My organization name is United Way Mumbai. Ours is a non-government organization and environment is one of the focus area. We have multiple interventions. One of the intervention is conserving the seashores. So Mumbai, as you all know, Mumbai is famous for beaches and it is one of the recreation spot which is considered by the Mumbaikars, and outside also when tourist comes, first thing is the beach. Obviously it tends to high footfall of tourists, it tends to get dirtier. But do you think all the waste which comes here, do they bring in or high tide से आता है? हाई टाइड से आता है ना यार, Of course, high tide से ही आता है. So not everything beach goers bring in, but lot of the waste which comes here is through the high tide. And that is why it is very important for us to realize that waste segregation at source is very important. That is why we have gathered here to sensitize ourselves, and so that we get sensitized and we sensitize the other fellow members or team members or our family members as well. So few do's and don'ts for the beach cleanup drive. We will be giving you safety gear such as hand gloves and face mask. Along with that, you do not pick any waste which you are not comfortable of. Any kind of syringes, broken glasses, do not pick it up. Do not empty any cans which have any kind of liquid or fluid. So it may harm the marine biodiversity also. So one of the common understanding is beaches are for recreation, but it is not. It is for our recreation. So there are a lot of marine species. Because of our actions, they are suffering. So this is more of a sensitization activity. Please, I know this is a team building activity as well, but be aware of whatever waste you are picking up. Any kind of reflections, we can discuss it towards the end of the drive. The do's and don'ts. Do's do not pick up any shells, or they belong to the ocean, so do not pick up any shells. And whatever waste you are picking up, if there is sand inside, just empty it and put it back in the waste bag. In case if your gloves gets torn, ask for a fresh pair of gloves. And there are hand sanitizer. There is also first aid kit in case if there is required. Yeah, come on, let's get started. Any questions? सो अभी जस्ट इंस्ट्रक्शंस हुआ है, मैडम ने जस्ट दिया है द कोऑर्डिनेटर कि क्या होना चाहिए, द डूज एंड डोंट्स अभी जस्ट बातें हुई है। एंड सब लोग जो है ग्लव्स पहनेंगे और जो प्लास्टिक बैग उसमें कवर करके रखेंगे ऑल द गार्बेज आइटम्स। जो कंफर्टेबल नहीं है, जो चीज़ उठाने में वो ना करे, ये भी बताया गया है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो ये ग्लव्स है जो कि अभी जस्ट देने वाले हैं, और इसको पहनकर ही बीच जो है वो साफ किया जाएगा। ये है गार्बेज बैग, जो भी कचरा है वो इसके अंदर डालेंगे। और ये जो है ये है मास्क जो कि दिया जाएगा। सो 3 आइटम। वेरी गुड, थैंक यू। आस लगी इसके लिए पानी का भी आयोजन किया गया, मतलब पानी ऑफकोर्स है।
सबसे ज़्यादा तो अदर्स दिखाई दे रहा है। इधर से सेग्रीगेट करना है ये पूरा। वो हाथ इसके सामने रखना है। तो यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट साइनेजेस जो है लगा के रखे। प्लास्टिक बैग्स लिखा है तो यहाँ पर आके आप प्लास्टिक बैग्स रखिएगा, ग्लास, माइक्रो प्लास्टिक और बहुत सारी चीज़ लगा के रखे। तो वो हिसाब से आपको कचरा जो है सेग्रीगेट करके रखना है, ताकि जो यहाँ से पिकअप करेगा उनको इजी होगा और वो हिसाब से उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। प्लास्टिक का वाला कर। ये है वो माहिम पुलिस स्टेशन, रास्ते पर है और बीच के साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल पुलिस स्टेशन इन मुंबई, यू कैन से दैट एज पर मी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आज जो है वो बीच क्लीन हो रहा है यहाँ पर माहिम रेती बंदर में, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बाय बेस्ट सेलर इंडिया। अच्छा इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई थी कि आप पहले व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स होना चाहिए कोऑर्डिनेटर के द्वारा, और उसी के चलते फिर सब लोग ने बिफोर इवन पिकिंग अप एनी गार्बेज ग्लव्स, प्लास्टिक बैग्स और मास्क का यूज़ किया गया है। तो प्रिकॉशन जो है वो ली गई है। So is this some kind of a suntan you guys are using? Sunscreen. Oh sorry, sunscreen. बहुत लोग शिद्दत से काम कर रहे हैं। worry about that. It is not going back into the ocean. Everything will be recycled. अभी जो है वो क्लीनिंग का वर्क हो गया है। 45 मिनट्स का सेशन था, हो गया है। दे आर टायर्ड बिकॉज ऑफ कोर्स सन भी था, लेकिन अच्छा लगा सबको साफ़ करते हुए देखकर। जब साफ़ करते तभी पता चलता है कि गंदगी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो गंदगी है वो कहीं और से यहाँ पे आ रहा है बिकॉज ऑफ टाइड। जो भी है साफ़ सफाई हो गया है, पूरी 100% नहीं है बट some percent which bestseller India has put together, which is highly appreciated. अच्छा काम था, इसके लिए मैं सैटरडे को मॉर्निंग में आया और ये जो कवरेज है वो कवर किया। गंदगी ना करो, जगह ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। एंजॉय सर। देखो तो होने के बाद हाथ जो है वो सैनिटाइज कर लिया है और अभी थोड़ा सा स्नैक। और वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है उनसे भी बात करते हैं। So with me I have Manishri from United Way Mumbai, and we are a non-government organization which was started in the year 2001.
We are affiliated to United Way Worldwide, which is in the US. We have 5 focus areas. Environment is one of the focus area, and in environment we have a beach conservation project where we symbolically adopt beaches and we deploy various interventions on those beaches. So one of the intervention which we do is daily waste management, where we deploy Safai Sathis who dedicatedly work for 8 hours. They collect the waste, clean it, segregate it and send it for further recycling. So in a way we are not sending this waste back into the ocean and also not to the landfill, but we are co-processing it and recycling it. And we also have various sensitization activities where we sensitize volunteers through education sessions. We also sensitize volunteers through beach cleanup drives, shore walks, so that they understand that beach is just not a mere recreation thing, but it is full of flora and fauna. So we should protect our beaches and our environment as well. Right, that's good to hear, Manushree. Just one more thing before I just take your leave. Do you want to say that about other corporates who are actively involved in such initiative as well? So there are big corporates who are involved in this particular initiative. To name a few, Coca-Cola India, also JP Morgan, various corporates as in Pfizer, and one of the biggest corporate which we are supporting is Indian Hotels, which have symbolically adopted this beach and for an intervention of 2 to 3 years. Yeah. So Manushree, it was nice to have you and nice Thank to you so meet you. much. Thank you so much. It was a really good cause, corporate social responsibility, which I thought I would want to be part of also. If not really cleaning it, but just to shoot this initiative and put it to my subscribers as well. Alright, so thank you so much. Nice to meet you. Bye. The team who made the difference. Thank you very much for today. तो नाश्ता करके भी हो गया, और ये जो जगह है रेती बंदर, यहाँ पे पहली दफ़ा आया, मैं कभी आया नहीं था इस तरफ. हमेशा सोचता था कि इस तरफ आऊँगा, बट यहाँ पे आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. ये बहाना बहुत अच्छा था. बहाना मतलब ये बहुत मुझे चांस मिला. हासिल ने मुझे कॉल किया और बोला कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव जो है इनका क्लीन अप का वो चल रहा है, और उसी के चलते मैं आया हूँ. एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे आया. ऑल्दो आई वाज नॉट पार्ट ऑफ क्लीन अप, बट आई वाज कैप्चरिंग इट. हेलो Zen, how are you? Very good, Shwet. How are you doing? So very good, the initiative which your company had taken. So glad to be a part of it. Thank you so much. Thank you. Yeah. Much needed. Yeah, much needed. और जैसे ही आप अंदर आते हो, एक्चुअली अंदर आए मतलब अंदर आने के बाद तो आपको वो बीच दिखता है, वो जो अभी क्लीन हो चुका है. और यहाँ पर देखिए ये जो पेड़ है ना, ये मुझे कारवार की याद दिलाते हैं. वहाँ पे हम लोग सुरू के पेड़ बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं, सुरू रुख. और ये देखिए यहाँ पे कुछ जगह है जहाँ पे लोग शायद आके एक्सरसाइज करते हैं. व्हाट अ प्लेस टू एक्सरसाइज, बट इट इज़ सो वेरी ब्यूटीफुल. डजंट सीन दैट यू आर हियर इन मुंबई, बिकॉज मैं यहाँ पे कभी आया नहीं था. बहुत अच्छा है. तो ये देखो बीच जो है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है. होने के बाद जो है वो खुशी अलग लेवल की होती है, बिकॉज बेस्ट सेलर्स इंडिया ने जो है आकर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम किया. मैं आपको दिखाता हूँ कितना क्लीन लग रहा है बीच. आप
सेल्फी जो है वो अच्छे से ले सकते हो, बिकॉज ये जो बीच है बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है। और उस तरफ जो है आप देख सकते हो कितना मतलब और साफ़ करने की ज़रूरत है, लेकिन सब लोग अपना वक्त सिर्फ 1 घंटा तक ही साफ़ कर सकते हैं, गर्मी बहुत है। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो द्वारा जो कोई कॉर्पोरेट्स तो ये कर रही है कि आ रहे हैं यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ले रहे हैं और बीच को जो है वो साफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये इनिशिएटिव सिर्फ एक कंपनी का नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग भी आने चाहिए, नॉट सिर्फ कॉर्पोरेट्स बट इवन सोसाइटी वाले जिसको लगता है कुछ करना है तो यहाँ पर आओ। यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी उनको लगता है जहाँ पे वो आ सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो भी देखे आपने इस वीडियो में, जैसे कि सैनिटाइज पूरा कर लेना होने के बाद, लेकिन उसके पहले ग्लव्स लगाना, मास्क लगाना और डस्टबिन बैग लेके साफ करो, सैनिटाइज करके घर जाओ। थैंक यू सो मच मासलाम वंस अगेन एंड योर टीम। Thank you, Suresh. तो इतने सारे कितने बोरी है, कितने बैग्स है? 18 बैग्स है जो कि बेस्ट सेलर्स इंडिया ग्रुप ने किया है। थैंक यू, बाय बाय। और उसी के साथ आज का दिन जो है वो ख़त्म हुआ, बीच क्लीन हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर, जो कोई माहिम में यहाँ से बहुत बार गुजरे रहेंगे लेकिन यहाँ पे आए नहीं होंगे। यहाँ पे आना और देखना कितना ब्यूटीफुल है अपना मुंबई माहिम रेती बंदर। बाय बाय। बाय बाय।